week, now we are practicing prepositions. So, are you ready to practice? Yes, sir. Okay, where I'm are you ready. from? Where are you from? I'm from Bihar. Now I'm currently living in Gurgaon. Okay, so Anjali, on the board you can see these are the prepositions. Can you speak the name of all the prepositions? Yes, sir. In, into, within. In the first group we have on, at, On, upon, for, which is also called still, onto. about, with, through. Okay, from, by, with, since, In, for, of, through, through, till. of. Okay. Yes. In the next group we have beside, Besides, besides, except. except, and apart from. Yes. Okay. In the next group we have between, among, and without, behind, within, without, behind, across, towards, about, before, around, around, above, out, till, up to, and by. Next, against, or against, among, beneath, between, with, behind, yes. behind, because of. Okay. Okay. चलो, because of, इसके लिए एक और होता है due to. ये दोनों सिमिलर मीनिंग देते हैं, ठीक है? In spite of, एक होता है आपका beneath, under, below, above, over, एक होता है in around. spite of. yes, inside, outside, above, around. हाँ जी, ये तो हो गया. And in spite of, इसी का दूसरा नाम होता है despite, instead of, ठीक है? और उधर कुछ फ्रेजल प्रीपोजिशन भी बाकी है. चलो ठीक. by means of, by reason of, in addition to. Okay, during, in front of. हाँ जी, ये वाले रहे हैं. एक आपका ड्यूरिंग बच्चा है, एक आपका इन फ्रंट ऑफ बच्चा है, एक आपका बिफोर बच्चा है, एक आपका आफ्टर बच्चा है, एक आपका अपोजिट बच्चा है, ठीक है? सो ये सारे आपके प्रोपोर्शंस हैं. अब आप देखिए, सबसे पहले हम लोग बात कर रहे हैं इन द फर्स्ट ग्रुप वी हैव इन इनटू विद इन. चूंकि हम ये सब पढ़ चुके हैं, नाउ टुडे वी आर प्रैक्टिसिंग एंड यू ऑल हैव टू लिसन वेरी केयरफुली. और अच्छे से बोलना है, धमाकेदार तरीके से बोलना है. चलिए देखिए, बिसाइड का मतलब क्या होता है? के बाजू में. क्या होता है? के बाजू में. हाँ, मेरे घर के बाजू में एक दुकान है. फटाफट फास्ट. yes, there is a shop besides my home. Excellent. Okay, there is a shop beside my home. Okay, इस कॉपी के अलावा भी मेरे पास 2 और कॉपीज है. I have to, besides this copy, I have 2 more copy. Excellent. I have 2 more copies besides this copy. Okay, except, इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं है. Except this, I have nothing. Except this, I have nothing. Okay, between के बीच में मैंने कहा इंदौर और भोपाल के बीच में एक नदी है. Between Indore and Bhopal, there is a river. Excellent, Anjali. Between Indore and Bhopal, there is a river. There is a river. So, Anjali, where are you living? I am living in Gurgaon. Gurgaon. So, you are doing job there or study? You are studying there. No, sir. I am studying. I am nursing first year of student. Okay, that's good. And up to 12th, what was your medium? It was English medium. My stream is science. Okay. Chali, yes, now. But now my medium is Hindi. Now your medium is Hindi nursing. Yes. Okay. Between के बीच में among भी क्या होता है?
के बीच में, के बीच में, ओके। दो के लिए क्या लगाते हैं हम? between, दो से ज्यादा के लिए among, यस, ओके। के बिना, विदाउट, मैंने कहा yes. दोस्तों के बिना, Without friend, हाँ विदाउट without फ्रेंड्स, friends. मैं वहां अपने दोस्तों के बिना नहीं जाऊंगा। I will not go there without my friend. आई विल नॉट गो देयर विदाउट माई फ्रेंड्स। मेरे घर के पीछे एक गार्डन है। There is a garden behind my home. देयर इज अ गार्डन बिहाइंड माई होम, ओके। मेरे घर के सामने एक गार्डन है, There is a garden in front of my home. ओके। देयर इज अ गार्डन इन फ्रंट ऑफ माई होम, ओके। मैं दीवार के उस पार देख सकता हूँ। I can see across the wall. आई कैन सी क्रॉस द वॉल। आग सभी दूर फैल चुकी है। And the fire is द फायर हैज spread all spread across the forest. all सभी दूर across- फैल गई है, पूरे जंगल में फैल गई है। द आग हैज द फायर हैज fell gay spread here. The across fire the has forest. spread across the all forest. over the forest. Okay. अपने काम के प्रति, Towards your work मैंने कहा अपने दोस्तों के प्रति, and towards our friend, अपने काम के प्रति, towards our work. मैंने कहा तुम्हें अपने काम के प्रति ईमानदार होना चाहिए। You should honest towards your work. You should be honest towards your work. Okay, तुम्हें अपने फैमिली के प्रति ऑनेस्ट होना चाहिए। You should be honest towards your family. You should be honest towards your family. Okay, मैं आपके बारे में बात कर रहा हूँ। I am talking about you. वह लगभग 10 बजे यहाँ आएगा। He will be come here around 10 o'clock. He will be come here or he will come here? आएगा. Yeah, he will will come come here here. around 10 o'clock. Okay, मैं घर के चारों ओर टहल रहा था या घूम रहा था। I am walking around the home. चारों ओर अराउंड, आई वॉज वॉकिंग अराउंड द होम, ओके। और लगभग 10 लोग कल एब्सेंट थे। There absent थे. There was absent 10 people. Around 10 people. There were 10 people absent in the class yesterday. There were 10 There were students 10 absent in the class people yesterday. absent in class yesterday. मैं आज 11 o'clock तक पढ़ाऊंगा। Today I will teach till 11 o'clock. Till 11 o'clock by 11 o'clock. Okay, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। I cannot against him. I cannot speak against him. वह मेरा दोस्त है, मैं उसके खिलाफ नहीं बोल सकता। He is my friend. I can't speak against him. ओके, रवि के कारण मैं फेल हो गया। Because of Ravi, I failed. I failed. देखो, किसी पर्सन की बात करते हो ना तो बिकॉज ऑफ लगाते हैं पर्सन के साथ, और किसी सिचुएशन की बात करते हो जैसे भारी बारिश के कारण, ये एक सिचुएशन, एक स्थिति है, तो उसमें ड्यू टू लगाओगे, है ना? Yes. जैसे आप कहोगे तुम्हारे कारण मैं वहां नहीं जा पाया, क्या कहोगे? Because of you, I can't go there. बिकॉज ऑफ यू, I will be. मैं वहां नहीं जा पाया, आई कुडंट गो। I could not go there. आप इसको ऐसा भी स्टार्ट कर सकते हैं कि आई कुड नॉट गो देयर बिकॉज ऑफ Because यू, of इसको you. लास्ट में लगा सकते हो, है ना? Yes, sir. और दूसरा जो है आपका नेक्स्ट वाला, Yes, sir. बिकॉज ऑफ यू आई कुडंट गो देयर, और दूसरा है आपका भारी बारिश के कारण मैं वहां नहीं जा पाया। Due to heavy rain, I can't go there. I couldn't go there. हैवी रेन, मैं वहां नहीं जा पाया, आई कुडंट गो देयर। Go there. ठीक है, ड्यू टू हैवी रेन आई कुडंट गो देयर। दे हैव नॉट टोल्ड, निवेदन है ये क्वेश्चन तब पूछा करो जब हम प्रैक्टिस करवा रहे हो, है ना? उस टाइम पर लाइक अभी तो हम इनसे डिस्कस कर रहे थे। यहाँ पर आर्टिकल लगाना पहले, ये वर्ब ये है, ये नाउन है, ये वर्ब नहीं है लाए, ठीक है? लाए हालांकि वर्ब भी है, अगर वर्ब की तरह यूज करोगे तो ऐसा यूज करना उसको। दे हैव नॉट लाइड। आपको शायद एक बार हमने बताया था, जिनको नहीं पता वो देख लो। हेल्प वर्ब भी है, हेल्प नाउन भी है। Yes, sir. लाए वर्ब भी है, लाए नाउन भी है। एडवाइज वर्ब भी है और एडवाइज नाउन भी है, लेकिन अंतर है दोनों एडवाइज में। जो वर्ब वाला एडवाइज है उसमें SE लगा है, जो नाउन वाला है वो उसमें CE लगा है। तो हेल्प जब आपका वर्ब के रूप में काम करता है और नाउन के रूप में काम करता है, तो दोनों में अंतर है, ठीक है? जैसे देखो, आपने कहा मैं आपकी मदद करूंगा,
आई विल हेल्प I यू। will help you. ठीक है, ये यहां पर हेल्प आ गया। मैं आपकी मदद लूंगा, आई विल टेक योर हेल्प। चलिए आप बताइए अंजलि, दोनों हेल्प में क्या डिफरेंस है? एक हेल्प यहां लगा है, एक हेल्प यहां लगा है। एक हेल्प जो है वो नॉन है और एक हेल्प ये verb है। आपका वर्ब है, Yes, ठीक है, जो हेल्पिंग वर्ब I के will बाद आ help रहा है। और you. ये जो यूअर है, यूअर के बाद जो हेल्प आ रहा है, ये आपका नाउन है। Yes, sir. अब आप कहोगे सर हम कैसे पहचानेंगे कौन सा नाउन है कौन सा वर्ब है ना? तो हाँ, हेल्पिंग वर्ब के ठीक है। बाद हमेशा मेन वर्ब आता है। आई विल गो, आई विल कम, आई विल हेल्प, आई विल टीच, है ना, आई विल एडवाइज। लेकिन जब किसी पजेसिव के बाद में वर्ब आ रही है, पजेसिव केस के बाद में कोई वर्ब आ रही है, तो वर्ब नहीं, वो फिर नाउन है। जैसे योर पेन, आपका पेन, तो पेन क्या है? नाउन है। योर मिस्टेक, आपकी गलती। योर हेल्प, आपकी मदद। योर एडवाइस, आपकी सलाह। जिस देखो ये वाला एडवाइस जो है वो यहां आएगा, अगर आएगा भी तो, ठीक है। आई विल टेक योर एडवाइस, आई विल टेक योर एडवाइस मतलब मैं आपकी सलाह लूंगा। और आई विल एडवाइज यू, मैं आपको एडवाइस करूंगा। ऐसे ही देखो ये ला है, ठीक है। मैंने कहा उसने झूठ बोला, सो शी टोल्ड अ लाई। अब यहां पर लाई क्या है? नाउन है। आप ऐसा भी लिख सकते हो, शी लाइड, शी टोल्ड अ लाई, उसने एक झूठ बोला, एंड शी लाइड, उसने झूठ बोला। दोनों सिमिलर मीनिंग दे रहे हैं, या नाउन है, ये वर्ब है। चलिए देखिए प्लीज, बिसाइड का मतलब होता है के बाजू में, बिसाइड्स का मतलब होता है के अलावा भी, एक्सेप्ट का मतलब होता है के अलावा, अपार्ट फ्रॉम का मतलब भी होता है के अलावा, बिटवीन के बीच में, अमंग के बीच में, विदाउट के बिना, बिहाइंड के पीछे, अक्रॉस आर पार, दूसरा सभी दूर, टुवर्ड्स के प्रति, दूसरा अबाउट के बारे में, लगभग, अराउंड चारों और लगभग, टिल अप टू बाय तक, बीनीथ, अंडर, बिलो। भाई तीनों का मतलब क्या होता है? तीनों का मतलब होता है के नीचे, और इन दोनों का मतलब होता है के ऊपर। चलो देखते हैं अगला कौन है। वाओ, अगले पार्टिसिपेंट हमारे साथ जुड़ रहे हैं, दैट इज चलो कोई गल नहीं, जी इधर सर। ध्यान दो। मैंने कहा सर लिखने आपकी के आवाज बाद, अटक रही है, हाँ जी, आपकी आवाज अटक अटक के आ रही है सर। अरे यार आज हमने हमारा माइक है ना अंदर लगाया, तो हो सकता है इट माइट भी उसके कारण हो रहा हो, लेकिन मेरे साइड से आवाज तो क्लियर जा रही है। चलो, इन स्पाइट ऑफ का मतलब होता है के बावजूद। मैंने कहा खाना खाने के बावजूद, बोलो। इन स्पाइट ऑफ ईटिंग फूड, वहां जाने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ गोइंग देयर, ओके, इंग्लिश सीखने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ लर्निंग इंग्लिश, सेंटेंसेस बनाने के बावजूद। इन स्पाइट ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, क्या बात, इन स्पाइट ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस। सेंटेंसेस, सेंटेंसेस बनाने के बावजूद भी टीचर ने उसे डांटा, क्या कहेंगे? इन स्पाइट ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस टीचर स्कोल्डेड हर, ओके, द टीचर या हिम, scolded him या टीचर scolded her। ओके, हर। नेक्स्ट, लेट होने के बावजूद भी टीचर ने उसको कुछ नहीं कहा। इन स्पाइट ऑफ गेटिंग लेट टीचर डिड नॉट से एनीथिंग, The teacher did not say her anything. The teacher did not say him anything. Okay, पानी पीने के बावजूद भी वो प्यासा है। इन स्पाइट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर ही इज अ लिटिल हंगर। सर प्यासे को क्या बोलते? थ्रस्टी, 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 थर्स्टी। ओके फाइन। नेक्स्ट, मैं आपके खिलाफ नहीं बोल सकता। आई विल नॉट स्पीक अगेंस्ट यू, आई कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट यू। आई कैन नॉट स्पीक मैं अगेंस्ट आपके यू, खिलाफ नहीं बोल सकता, आई कैन नॉट स्पीक अगेंस्ट यू। ओके, के बावजूद। मैंने कहा सेंटेंसेस बनाने के बावजूद। डिस्पाइट ऑफ मेकिंग सेंटेंसेस, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगता है डियर। डिस्पाइट, हाँ, despite. डिस्पाइट मेकिंग सेंटेंसेस मतलब सेंटेंसेस Despite बनाने के बावजूद। ओके, लिखने के के अलावा तो आपका यहाँ दिया हुआ है, की बजाय, सॉरी, मैंने कहा लिखने की बजाय आपको बोलना चाहिए। इंस्टेड ऑफ राइटिंग यू विल हैव टू स्पीक, Okay, You instead should of writing, speak. you should speak. Instead of writing, you should speak.
ओके मेरी छुट्टियों के दौरान मैं शिमला ड्यूरिंग माई हॉलीडेज हाँ ड्यूरिंग माई हॉलीडेज मैं शिमला जाऊंगा. आई विल गो टू शिमला. बोलो. I will go to during my holidays. I will go to Simla. ओके मेरे घर के सामने एक गार्डन है. There is a garden in front of my home. ओके इन फ्रंट ऑफ माई होम, बिफोर माई होम या अपोजिट माई होम, तीनों कह सकते हो. ठीक है ना. वह सुबह से पढ़ा रहा है. He has been teaching since morning. He has been teaching since morning. Okay. वो 2 घंटे से पढ़ा रहा है. He has been teaching for 2 hours. He has been teaching for 2 hours. Okay. Next मैं पेन से लिखता हूँ. बोलो. जब भी किसी टूल या इक्विपमेंट की मदद से आप कोई काम I write with pen. I write with pen. Wow. मुझे पेन से लिखना पसंद नहीं, मैं पेंसिल से लिखता हूँ. I don't like write with pen. I write with pencil. I write with pencil. Pen. Okay. क्या आप हमेशा क्या कह सकते हैं हम, मुझे सेंटेंस ही नहीं याद आ रहा है. चलो, क्या आप हमेशा सब्जियां चाकू से काटते हो? Do you always chop vegetable with knife? Do you always cut vegetable, chop vegetable with knife? Okay. हाँ, मैं हमेशा सब्जियां चाकू से काटता हूँ. Yes, I always cut vegetable with knife. Yes, I always cut vegetable with knife. Okay. क्या आप घर पर हैं? Are you at home? हाँ, मैं घर पर हूँ. Yes, I am at home. Yes, I am at home. मैं वहाँ 9 बजे जाऊंगा. I will go at 9 o'clock. Okay, वह 9 से 10 के बीच में आएगा. He will come between 9 o'clock to 10 o'clock. Wrong. Sir, right or wrong? हाँ, Wrong. between के साथ क्या लगता है? End. हाँ जी, तो क्या बनेगा इंग्लिश में? वह 9 से 10 के बीच में आएगा. He will come between between 9 o'clock and 10 o'clock. yes, between 9 o'clock and 10 o'clock. ये विशेष ध्यान देना है कि एंड लगेगा. और वह 9 बजे से 10 बजे तक के लिए आएगा तो From he will come from 9 o'clock to 10 o'clock. to 10 o'clock. हाँ, from 9 o'clock to 10 o'clock, between 9 o'clock and 10 o'clock. Getting? Yes, sir. Okay, sentences बनाना शुरू करो. Start making sentences. इंग्लिश सीखना शुरू करो. Start learning English. इंग्लिश सीखते रहो. Keep learning English. Wow, that's great. Adil, you're a brilliant boy. I appreciate your efforts here. Okay, Yes, sir. let me know what you are doing in your studies. Sir, nothing. Nothing. It doesn't sound good. Start studying something. Start doing something. Start, making, just focusing on your career. What you have done in your studies? Sir, I have completed my 12th class. Yes. Now after the 12th, start doing preparation for any competitive exams. You can start doing preparation Yes, sir, for yes, anything sir. that you want, like, Okay. हमारे साथ और भी काफी सारे लोग जुड़ रहे हैं. I can see right now we have, इनसे बात हो गई हमने, इनसे तो बहुत बार बात कर ली है. क्या नाम है इनका? The next participant we have right now is Kirti Shakya. Kirti Shakya is joining us. Hello. Hello. Good morning, sir. Good morning, Miss Kirti. So let me know how is the classes going on. Are you improving? Yes, sir. देखते हैं कितना improve कर रहे हैं आप. चलिए, मैंने कहा लिखने के बावजूद भी, क्या कहेंगे? Say again, sir. लिखने के बावजूद भी. Despite of writing. देखो, लिखने के बावजूद भी, despite of writing. क्या ये सही है?
Despite, sir. Despite writing. डिस्पाइट राइटिंग, Despite डिस्पाइट writing. के साथ ऑफ नहीं लगता है, या फिर आप क्या कह सकती हैं, इन स्पाइट ऑफ राइटिंग। Yes, sir. In spite of writing. ओके, बोलने के बावजूद। In spite of speaking. ओके, बोलने की बजाय। Instead of speaking. एक्सलेंट, इंस्टेड ऑफ स्पीकिंग। सुनने की बजाय। Instead of listening. इंस्टेड ऑफ लिसनिंग, सुनने से पहले। Before listening. टेबल के नीचे। Under the table. पेड़ के नीचे। Under the tree. ओके, आसमान से भी ऊपर। above the sky। Oh, above the sky. ओके, नाउ बादलों से ऊपर। Above the clouds. above the clouds। ओके, या over the clouds भी कह सकते हो आप, ठीक है। Yes, now sir. the next that we have, मेरी छुट्टियों के दौरान। During my vacation. 24 घंटे, अराउंड द क्लॉक। Around the clock. हाँ जी, जब आप बात करो कि वो 24 घंटे पढ़ाई करते रहता है, ही ऑलवेज कीप्स स्टडीइंग, या अराउंड द क्लॉक, इसके लिए केडी में यूज होता है। ये देखो, ये जैसे घड़ी होता है ना, इसमें क्लॉक Yes, है ना? sir. तो इसके चारों ओर ये एक सर्कल लग जाता है, तो एक फ्रेज बनता है अराउंड द क्लॉक। अराउंड द क्लॉक मतलब means- 24 घंटे पूरी तरह से कंप्लीटली। मैंने कहा शी कीप्स स्टडीइंग, वो पढ़ाई करते रहती है अराउंड द क्लॉक। बोलिए। She keeps studying around the clock. ओके, वह हमेशा अपने करियर के बारे में सोचती रहती है, वह अराउंड द क्लॉक अपने करियर के बारे में सोचती रहती है। She always think Keeps around the thinking. career. कीप्स She थिंकिंग always keeps thinking around the career, अराउंड द क्लॉक। around the clock. ओके,